Hello students, in this lecture of operating system, we'll discuss the next topic, that is the functions of operating system. We already talk about what is the operating system, what are its types, why we need the operating system. So let's start with the further process, that is the functions of operating system. The very first function is the process management, how to handle the process and how to execute, how the processes are to be created and the execute. So it may handle all the process management, process manage all the process, how these processes are to be scheduled according to the priority, etc. Next is the memory management, how the processes, how the everything is to be stored, how the storage, main memory and the secondary memory is comes to users in case of the operating system. It may handle all of the storage purpose, also input output management, information management, file management, security. It may take all the information and make it confidential to the other users. Control over the system performance, it may provide the higher CPU utilization and provide a higher performance, system performance. Job accounting, how the jobs are to be executed according to the priority. Error detecting, adds coordination between the other software and the user. So these are the function, we will discuss these one by one. The very first is the process management. So what processor management or the process management? So let's start with what it means. That first of all we need to know about what is the process. Process is the program in execution which is stored in the main memory. So it may have the many stages. So how to handle these and how the processes are to be created and executed. So it is the responsibility of the operating system to create the process and execute it. And then we have the multi-programming. In case of the multi-programming environment, the operating system decide the order in which the processors have access to the processor, which means that in which order each process may have the chance to access the processor or the CPU. How much processing time, कितने time के लिए वो चाहिए CPU, and for each process. So this function of operating system is sometimes called the process scheduling. So हर process को CPU assign करना है for the execution purpose, वो कितने time के लिए करना है, then that process is known as the process scheduling. So it may also suspend the process and resumes a process, which means that के अगर by chance हमारे पास दो processes है, दोनों में से कौन सा पहले execute करना है. अगर 1 and 2 दो प्रोसेस है, 1 को हम पहले एग्जीक्यूट करें तो 2 वाला जो है वो कुछ टाइम के लिए वेट करेगा जब तक फर्स्ट वन कंप्लीट हो जाएगा. फर्स्ट वन की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी, देन हमारा सेकंड वन जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा. जब सेकंड वाला मतलब कि जो हमारा सेकंड वन वेट कर रहा है तो वो डिस्पैच स्टेट हो जाती है. तो ये हम आगे फर्दर करेंगे इन स्टेजेस ऑफ द प्रोसेस. एक्सप्लेन में करेंगे व्हाट इज डिस्पैच एंड व्हाट इज सस्पेंड मीन्स. सो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मतलब कि दो से ज़्यादा प्रोसेस के बीच में कौन सा प्रोसेस जो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो दोनों में से कौन से प्रोसेस को CPU जो है असाइन करना है फर्स्ट, दैट इज द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट इज डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो द नेक्स्ट we have the operating system that may perform the various activities when we are using the process management or the processor management. First one is it keeps track of the status of the process. What is the status of the process? Either in the waiting state or in the ready state. The program which performs this task is known as the traffic controller, which may keep track of the status of the process. That program is known as the traffic controller. Then allocate the CPU, that is the processor, to a process. Deallocate the processor when the process is no more required, which means that for example हमारे पास कोई process है P1 and P2. हमने P1 CPU के पास कौन सा प्रोसेस गया, P1, जो CPU जो उसे क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है.
देन P2 हमारा क्या करेगा, तब तक वेट करेगा। जब P1 का एग्जीक्यूट हो गया देन CPU के पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। जब फर्स्ट क्या है, एलोकेट किया CPU फर्स्ट वन को, देन P1 का जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई तो P1 जो है एग्जीक्यूट हो गया वर्क। फॉर एग्जांपल हमें कोई वर्ड फाइल चाहिए थे, कंप्लीट वर्ड फाइल में वर्क कर रहे हैं हम, पूरा टास्क कंप्लीट हो गया, जो फाइल है दोबारा क्या है यूज़र के पास चली जाएगी। देन हम क्या कर देते हैं, जब काम फिनिश हो गया सारा, डी एलोकेट द प्रोसेस। देन व्हेन द प्रोसेस इज नो मोर रिक्वायर्ड, जब हमें वो प्रोसेस नहीं चाहिए तब क्या कर दिया हमने, CPU जो है वो उस P1 जॉब से हटा के P2 को दे दिया जिसे चाहिए। क्लियर। देन वी हैव द classification of the process which is based on the execution time. So CPU प्रोसेस को, जैसे प्रोसेस की ही बात करें हम यहाँ पर कि किसी प्रोसेस को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज द इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस एंड सेकेंड वन इज द CPU बाउंड प्रोसेस। सो प्रोसेस हमने क्या कहा था कि प्रोसेस क्या है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टेट में है। Program in execution is known as the process which is stored in the main memory. So most of the processes are input output operation and which may require higher need of input output time. That processes are known as the input output bound processors. CPU bound क्या है, जिसमें CPU टाइम ज़्यादा चाहिए। Most processors are CPU operations which may require more CPU time, which are known as the CPU bound processor. So in other terms we can say that CPU bound processors are those which require the more CPU time and spend more time in the running states we will discuss. So again ये concept हम उसमें भी repeat करेंगे in case of the state. तो किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास स्टेजेस होती हैं। स्टेजेस कौन कौन सी है कि आइदर न्यू स्टेट, रेडी, रनिंग, वेटिंग स्टेट एंड टर्मिनेट, which we will discuss in the further steps. Now we will talk about only the function. What are the function? First one था प्रोसेस मैनेजमेंट और द प्रोसेसर मैनेजमेंट। उसमें हमने बताया कि प्रोसेस क्या होता है और कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं, मैनेज कैसे करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस को मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेसर मैनेजमेंट है वो क्या देखता है, स्टेटस ऑफ द प्रोसेसर, जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोलते हैं, और CPU को असाइन करता है टू द प्रोसेसर जब उनकी जितना उन्हें CPU चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए अपने प्रोसेस के। जब पूरा काम हो गया देन डी एलोकेट कर दो। दो टाइप्स के होते हैं प्रोसेसर्स, इनपुट आउटपुट, जिसमें इनपुट आउटपुट टाइम ज़्यादा चाहिए जिन प्रोसेसर्स को। CPU बाउंड क्या होते हैं, जिसमें CPU टाइम ज़्यादा चाहिए होगा। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी मैनेजमेंट में फर्दर है कि हम स्टोरेज, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोरेज को कैसे मैनेज करता है। सो स्टोरेज में क्या कौन कौन सी मेमोरी आती है, प्राइमरी मेमोरी हो गया और सेकेंडरी मेमोरी हो गया। सो अगर प्राइमरी मेमोरी जो है मेन मेमोरी की बात करें तो वो क्या होती है कि लार्जर एरे ऑफ बाइट्स होती हैं जब वर्ड्स की फॉर्म में होती हैं, वेयर ईच बाइट और वर्ड इज असाइन अ सर्टन एड्रेस होता है जिसका। सो मेन मेमोरी को हम फास्टेस्ट स्टोरेज भी कहते हैं एंड इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली बाय द CPU। क्लियर। सो जब भी कोई टास्क होना होता है तो पहले जो CPU है वो किस में देखता है प्रोसेस को, मेन मेमोरी में। आफ्टर दैट सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है। सो इट इज़ the faster memory. For a program to be executed, it should be first loaded in the main memory. So next, swapping of the process. Swapping means कि P1 P2 है, P2 प्रोसेस जो है वो P1 की जगह पर आ जाए। तो स्वैपिंग ऑफ द प्रोसेस इज ऑल्सो डन बाय द मेन मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्लियर। Then we have the operating system functions which are to be functions or the activities which are to be performed by the memory management. So it keep track of the primary memory, that is the bytes or the word की form में होता है, which is used by the user program. Next, memory addresses को handle करता है, which are to be allocated to the different users or the different requirement according to the memory, so that has not been used
In multi-programming, the operating system decide the order in which the processors are granted the access to the memory and for how long, कितने टाइम के लिए वो जो प्रोसेस है वो उसे सीपीयू असाइन करना है। तो उसे जब सीपीयू असाइन करना है देन उसे मेमोरी में से कितने टाइम के लिए हमने यूज़ करना है। सो और स्टोरेज पर्पस के लिए भी प्रॉपर चाहिए कि वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो गया तो दोबारा वो स्टोर भी करेंगे हम कहीं पे। सो इट एलोकेट द मेमोरी टू अ प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट कर देता है। व्हेन द प्रोसेस रिक्वेस्ट इज, जब वो रिक्वेस्ट करता है। डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन द प्रोसेस हैज टर्मिनेटेड और इज परफॉर्मिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव द इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन में क्या है मेनली, द ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्सो हैंडल द इनपुट आउटपुट डिवाइस लाइक द प्रिंटर्स, CPU, एक्सेप्ट मॉनिटर, सो प्लॉटर हो गया। सो दीज डिवाइस ड्राइवर्स आर द सॉफ्टवेयर रूटीन्स that may control the respective input output devices through their controller। सो उसके लिए हम फॉर एग्जांपल प्रिंटर के लिए कमांड डालते हैं तो उसके लिए क्या है, एक सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी हम इंस्टॉल करेंगे। विदाउट द सॉफ्टवेयर ड्राइवर प्रिंटर को में हम कोई भी कंटेंट को जो है रिक्वेस्ट जो यूज़र करेगा उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, channels, etc. And this module is typically known as the input output traffic controller. It may also decide what is an efficient way to allocate the input output resources. If it is to be shared, then decide who get it, how much of it is to be allocated and for how long. This is called the input output scheduling. For example, printer के थ्रू हम कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं, अगर हमने 10 कॉपीज़ निकालनी है तो उसकी कमांड हम डाल देते हैं। तो उस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टास्क 10 कॉपीज़ निकालने के बाद फॉर द नेक्स्ट जो है हम कोई और प्रिंट निकाल सकते हैं कि कोई और कंटेंट का। सो वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग है। सो एलोकेट द इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड इनिशिएट द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। Reclaim the device as and when its use is through. In most cases, input output terminate automatically. जब सारे प्रिंट निकल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्या है, टर्मिनेट हो जाता है प्रोसेस। Next we have the information management function. It keep track of the information, its location, यूजर्स एंड स्टेटस। फॉर एग्जांपल कि मेन मेमोरी में से किसी फोल्डर में से हमें ABC फोल्डर में से कोई और कंटेंट चाहिए। क्लियर। तो आपको कॉलेज की एग्जांपल ले लूँ तो कॉलेज का कोई डाटा चाहिए जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फंक्शन जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है उस इंफॉर्मेशन को कि उसकी लोकेशन कहाँ पर है, कहाँ पर स्टोर है, कब यूज़ हुई थी, कितने टाइम पे यूज़ हो रही थी, क्या अपडेशंस हुई, कितने टाइम पे हुई, तो सारी डिटेल्स आ जाती हैं वहाँ पे। दिस मॉड्यूल कॉल्ड अ फाइल सिस्टम प्रोवाइड दिस फैसिलिटीज। इट डिसाइड हु गेट्स होल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फोर्स प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन एक्सेस मैकेनिज्म। इट एलोकेट्स द इंफॉर्मेशन टू अ रिक्वेस्टिंग प्रोसेस दैट इज ओपन अ फाइल। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे किसी को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें वो कलेक्शन जो भी हमारे रिज़ल्ट है, जहाँ कॉलेज की इंफॉर्मेशन है, क्लास की इंफॉर्मेशन है, उसके रिज़ल्ट की इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स की इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ पर एक फ़ोल्डर में स्टोर है। तो अगर उस फोल्डर को कमांड देंगे हम ओपन की तो उसमें से हम सारा डाटा देख सकते हैं। सो ये रिक्वेस्ट जो यूज़र करता है उसको ओपन करने के लिए वर्क जो करता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि हैंडल किया जाता है बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट डीएलोकेट द रिसोर्स, फॉर एग्जांपल वी आर क्लोजिंग एनी फाइल। So next, file management, which is same as the information management. It may manage the file, folder, directory system on a computer. Any data on a computer which is stored in the form of files, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं सारा का सारा डाटा, और उससे हम जो भी इंफॉर्मेशन होती है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसे एक फाइल एलोकेशन टेबल में स्टोर करके रखता है। फैट इज़ द फाइल एलोकेशन टेबल। सो फैट में क्या होती है, स्टोर होती है जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइल का नाम क्या है। फॉर एग्जांपल कि 5th सेमेस्टर की इंफॉर्मेशन है तो 5th सेमेस्टर फाइल का नाम लिखा है, टाइप टेक्स्ट और बाइनरी है,
साइज़ क्या है, कितने साइज़ की है, 128 KB की है जहाँ 1 MB की है। स्टार्टिंग एड्रेस, उसका स्टार्टिंग में एड्रेस क्या है जो मेमोरी में स्टोर हुआ है। एक्सेस मोड क्या है, आइदर सिक्वेंशियल है, इंडेक्स्ड है, डायरेक्ट है एंड रिलेटिव है। सो फाइल मैनेजर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, कॉपी एलोकेट मेमोरी को करने के, मेमोरी एलोकेट करने के लिए उस फाइल को, एंड ऑल्सो अपडेशंस जो हम उस फाइल फोल्डर में करते हैं फाइल एलोकेशन टेबल में। The operating system also take care of the file that are to be opened with proper access rights to read and edit them। कि ये भी देखता है कि उस पर कोई सिक्योरिटी तो नहीं लगी है। अगर प्रॉपर सिक्योरिटी है देन उसका एक्सेस किसी और को यूज़र को नहीं होगा, सिर्फ उसी को होगा जिसे उसका एक्सेस है बाय एंटरिंग द की एंड समथिंग एल्स फॉर द सिक्योरिटी पर्पस। So next we have the characteristics of the operating system in simple words। if एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए जहाँ आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाए, सो व्हाट इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सिंपल आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट इज़ यूज़र फ्रेंडली, easy to use, users may efficiently use this, and keep track of the status of each resource because it manage everything, hardware and the software resources, allows sharing of the resources, hardware and the software same thing। it provide the adequate security provide करता है which we already discussed, the protection provide करता है हर users के data को। so these are the characteristics। with this we already completed what is the operating system। next types, main जो questions आते हैं types, then next we have the functions of the operating system। so ये तीनों हमारी जो है वो already हो चुके हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का भी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपको टाइप्स सारी की सारी करवाई हैं। सो सीरियल ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच, मल्टी प्रोग्राम, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ये अलग अलग एक एक सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आ सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, मल्टीटास्किंग क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, देन वी हैव द फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, सारे के सारे आपको जो है 10 मार्क्स में आ सकता है क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस मैनेजमेंट का ही फर्दर जो कंसेप्ट है जिसे हम स्टार्टिंग से कंप्लीट करेंगे। सो इसमें फर्स्ट वन से स्टार्ट करें हम, व्हाट इज़ द प्रोसेस। सो दिस प्रोसेस, इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोसेस की स्टेट्स क्या है, पीसीबी क्या होता है, एट्रीब्यूट के प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, सो प्रियम्पशन क्या होता है, नॉन प्रियम्पशन, ये सारा का सारा हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।